Hello, everybody. A very good evening. My name is Satyam Jain, and I welcome you to Understand UPSC. First of all, a very big thank you to all of you. We have recently touched 125k subscribers on the YouTube and also 100,000 subscribers on the Telegram channel. With that, I would also like to tell that the PDF of this extremely superbly important lecture will be available on the Telegram channel itself. So the link of the Telegram channel is also in the description. You can join and have a look at this particular PDF. Now, coming to the context of this particular PDF. So, from the last nearly 3 to 4 years, I have been taking this particular lecture where I summarize all the learnings from hundreds and hundreds of PYQs into one single video so that you get the edge on the prelims day. And trust me, a lot of students have applied them over the years, have sent me their feedbacks and everything. Now, this particular year was a special one because we did live lectures in the MAD series and we took more than 20 hours of lectures in this particular series and we discussed nearly 600 questions. And this particular video is going to be a crux, a summary of everything that we have learned इन दी 600 क्वेश्चंस एंड मोर. ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद से करता हूँ लेकिन आप मतलब वो उन पेपर में नहीं आए हैं तो आपको नहीं पता है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मच मोर देन दिस. व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लाइक टेकन ऑल द ऑब्जर्वेशंस टुगेदर. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड. ओके, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव अहेड. Now, before I begin the video, there are 5 very important instructions. Please do not miss them. Anything that we will discuss in this particular video or beyond that, on that particular day of the examination, should be based on examiner's mindset. The entire MCQ aptitude development series of more than 20 hours worked on the examiner's mindset. So even today, the things that I'll discuss with you or on the examination day while sitting in the paper, आपको कुछ और याद हो या ना हो, आपको ये 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए. पहला क्या, एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़िए पेपर में, क्वेश्चन में, और दूसरा अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करिए. एंड कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, यू विल बी एबल टू यूज योर कॉमन सेंस टू द बेस्ट मैनर. नाउ, PYQs, trends and patterns. Everything is derived from PYQs, trends and patterns. Okay? There is an important thing that I want to tell you. Be confident on your knowledge where you have it. Full stop. यहाँ पे रुक जाती है बात. Be confident on your knowledge where you have it. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ये नॉलेज है, इस चीज़ की नॉलेज है, वो चाहे दुनिया में किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जा रही हो, आपकी किसी भी अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट जा रही हो, आपने कुछ भी सीखा हो, अगर आपको नॉलेज है, आप नॉलेज पे अपनी कॉन्फिडेंट रहिए पेपर में. डोंट स्टार्ट सेकेंड गेसिंग, डाउटिंग योर ओन नॉलेज. क्लियर? अगर नॉलेज नहीं है, एल्स बी कॉन्फिडेंट ऑन मैड एंड एप्टीट्यूड. बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बी कॉन्फिडेंट ऑन द लर्निंग्स दैट यू हैव हैड थ्रू आउट द मैड सीरीज. बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑन दैट बिकॉज इट विल वर्क. देखिए, आपका कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस by using MAD and aptitude, don't think that you will get all the 40 correct. You don't need to get all the 40 correct. Even if you are getting 10 to 12 questions wrong, मैं कह रहा हूँ 12 questions भी गलत हो जाते हैं, 12 questions भी. Let's suppose you get 12 questions incorrect, ठीक है, and you get 28 correct. 40 आपने मैथ से सॉल्व किए, 28 to 12 का रेशो आ गया, आपका 12 की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई, मान लीजिए 4 मार्क्स की, नेट करेक्ट 24, 48 मार्क्स. Even then you are getting 48 marks. Okay? ठीक है. सो प्लीज डू नॉट, एग्जामिनेशन में बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वन कैन डू. सो डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी इन द एग्जामिनेशन हॉल. बी कॉन्फिडेंट ऑन मैड एंड एप्टीट्यूड. अगर सोचा है, लगा के आएंगे, इसको यूज करेंगे तो करेंगे. वहां पे पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, चाइनीज में पेपर आ जाएगा, ये सोच के चेंज नहीं होना है. नॉलेज देन बैक्ड विथ मैड एंड एप्टीट्यूड. लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देर इज अ साइंस एंड मैथ बिहाइंड द एंटायर कट ऑफ थिंग. प्लीज इसको समझ लीजिए. इसको समझ लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, इसको समझ लेंगे तो एप्लीकेशन भी आएगा. देर इज अ साइंस एंड मैथ बिहाइंड द कट ऑफ थिंग. व्हाट डज दिस मीन? द कट ऑफ इज नेवर डिसाइडेड बाय द क्वेश्चंस which goes as per the pattern of the PYQs but are still incorrect. अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जो मैड के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, जहां पे मैड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पे आपका कट ऑफ -2.67 या -2.5 तक चला जाएगा. ऐसा क्वेश्चन आते ही ऐसा होगा. ये श्योर बात है.
whenever UPSC tries to play with these things, with these patterns and trends, the cutoff always decreases, decline. देखिए बहुत लोग हैं जो ऐसी तो आपको बातें बोलेंगे, अब ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, आपको ना मेरी सुननी है ना उनकी सुननी है, आपको खुद की सुननी है. इसलिए मैंने बोला कॉमन सेंस. Everything that we'll be talking today, we have talked in the past 5 to 6 months is based on common sense. कोई जादू का पिटारा नहीं है, ठीक है. These are common sensical things. Okay, they are there to make you comfortably cross the cutoff, provided you do not change your strategy in the examination paper, in the examination hall, on the D-day. ठीक है. I hope ये starting की 5 मिनट 6 मिनट जो भी मैंने ली, these were not waste of your time. आपको बेसिक बात समझ में आ गई. Now we will directly jump on and we will one by one see the observation, the trend, the pattern, the thing on which you have to develop an aptitude, and I will teach you through certain examples so that it get concretized in your head. चलो एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे सिंपल से शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज द एक्सट्रीम वर्ड का ट्रिक. व्हाट डज दिस मीन? अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट में ऐसी चीज़ें आती हैं कि भाई ओनली, है ना, ये पर्टिकुलर जो स्नेक है ये ओनली इंडिया में मिलता है, ये पर्टिकुलर राइनोसोरस ओनली इंडिया में मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इनकरेक्ट होगा. अगर नन आ रहा है, नन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट 2023 पेपर इज बेस्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, इज रन्स ऑन वाटर, इज प्राइवेटली ओन्ड, सब गलत. नन आ रहा है, गलत. कैन नॉट, द स्टेट कैन नॉट डू दिस, है ना, गलत. सिंपल, गलत. ऑल, जैसे क्या आएगा, ऑल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर फलाना फलाना इन नेचर, ऑल, है ना, जहां भी ऑल की बात कर रहा है कि ऐसे ऑल हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा. तो ये सब क्या एक्सट्रीम वर्ड्स हैं. अब देखिए कॉमन सेंस क्या बोलती है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू का पिटारा नहीं है, कॉमन सेंस है. कोई भी चीज सर्वोपरि नहीं होती है. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, नथिंग, कुछ नहीं है ऐसा. दैट इज वाई यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सट्रीम वर्ड्स डू नॉट वर्क. वो ऐड ही इसलिए किए जाते हैं ताकि स्टेटमेंट को गलत बनाया जाए. देयर इज वन एक्सेप्शन हियर विच इज ऑफ पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है. जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स में आपको दिख जाएगा कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, या फिर समटाइम्स पॉलिसी स्टेटमेंट्स. वन एक्सेप्शन इज फॉर पॉलिटी एंड अदर एक्सेप्शन इज फॉर पॉलिसी. व्हाट डज दिस मीन? जैसे मान लीजिए कहीं है कि सौभाग्य स्कीम इज फॉर हाउ लाइक प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द हाउस होल्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स वर टेकन टू गिव लैंड टू ऑल द लैंडलेस. तो ऐसी चीजों के, ऐसे केसेस में ऑल माइट गो करेक्ट. ठीक है, पॉलिटी एंड पॉलिसी वाली चीजों में तो कॉन्टेक्स्ट देखना है हमेशा, है ना, कॉन्टेक्स्ट देखना है हमेशा. करेक्ट. ओनली गवर्नमेंट कैन डू दिस, ओनली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट. तो ऐसी चीजों में, पॉलिटी की, पॉलिसी की चीजों में ये स्टेटमेंट ठीक हो सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है, द कॉन्टेक्स्ट देयर इज डिफरेंट, राइट. क्लियर हो गई बात. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग. द सेकंड थिंग इज जनरल वर्ड्स. पहला एक्सट्रीम, दूसरा जनरल. जनरल का मतलब क्या है? some microorganisms, some mushrooms, some people, some areas, some elements. सब सही होगा, सब सही होगा, एक बार भी गलत नहीं होता है. some species of herbivores, some species of turtles, हमेशा ठीक होता है. ठीक है. then there is a very important word which is one of the, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां देखिए स्टेटमेंट करेक्ट होगा ही होगा वो. there are many functions but one of the function is this, one of the national parks, वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज. वन ऑफ द अपने आप ही उसको बहुत डाइल्यूट कर रहा है. द जनरल वर्ड्स गो विद द पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है, डाइल्यूट कर रहा है स्टेटमेंट को, सिंपल कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, ईज आउट कर रहा है. ओके. देन एटसेट्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. अगर किसी स्टेटमेंट आपको एटसेट्रा लगा दिख जाए, एटसेट्रा इज द कंप्लीट कॉन्ट्ररी ऑफ ओनली. कंप्लीट मतलब 180 डिग्री कॉन्ट्ररी. ओनली क्या है कि सिर्फ ये, और एटसेट्रा क्या है कि ये भी और भी, जो हम यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं. तो इट इज अ कंप्लीट कॉन्ट्ररी ऑफ ओनली. ठीक है. तो जैसे एटसेट्रा दिख जाए, करेक्ट होगा वो स्टेटमेंट. ठीक है, बात समझ में आई. एमपी लैड्स फंड से हम ये करा सकते हैं, एटसेट्रा. करेक्ट, डोंट डाउट इट. ठीक है, क्लियर हुई बात. नाउ नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी करेक्ट अंटिल एंड अनलेस यू आर 1000% श्योर कि ये वाला एप्लीकेशन नहीं होता है. यूपीएससी हर साल ऐसे 4-5 क्वेश्चंस देती है, उसमें से ट्राई करती है किसी एक को गलत बना दे. आपको उस एक गलत को ढूंढने के पीछे नहीं जाना है. यूपीएससी विल गिव यू 4-5 सच क्वेश्चंस, ओके, जहां पे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होगा. जैसे किसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, जैसे इस बार दिया था एक्सेलरोमीटर का. ठीक है, ऐसे हमेशा क्वेश्चंस आएंगे. ओके. एक साल गायरोस्कोप
वगैरह का कुछ था क्वेश्चन, तो हमेशा हमेशा टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वैसे क्वेश्चंस में जैसे इस बार मान लीजिए क्या आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा, एआई आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगा, ब्लॉकचेन आ जाएगा, क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा, कुछ भी यार, कुछ भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन दे रहा है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। डू नॉट चेज दैट वन क्वेश्चन दैट माइट बी इनकरेक्ट, माइट बी, ऐसा हो सकता है कि ना ही हो, बट दैट माइट बी इनकरेक्ट, डू नॉट चेज इट, डू नॉट चेज इट। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो, टेक्नोलॉजी न्यू वर्सेस ओल्ड, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में मतलब टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट एनवायरनमेंट की कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है, ऐसी चीजों में न्यू वर्सेस ओल्ड होगा, जैसे कि पर्माकल्चर वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग, पर्माकल्चर वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग, इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे कि और क्या, एलईडी वर्सेस सोडियम लैंप, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, जो न्यू है टेक्नोलॉजी दैट विल ऑलवेज बी बेटर देन द ओल्ड वन, ऑलवेज बी बेटर देन द ओल्ड वन। न्यू वाली टेक्नोलॉजी ओल्ड वाली से बेहतर होगी, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट्स न्यू को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं, बेटर लाइट में दिखा रहे हैं, वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और जो ओल्ड को बेटर लाइट में दिखा रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इसमें कभी कभी एक एक्सेप्शन आता है, कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, पिछले 5 साल में 1 या 2 बार आया होगा, 6 सालों में। वो एक्सेप्शन क्या है, प्राइसिंग को लेके, राइट, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी कोई नई आती है तो कभी कभी उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, तो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन दैट कैन अकर, ओके। तो वो पता चलेगा, आपको देख के पता चलेगा कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, हाँ, जो महंगी थोड़ी सी हो सकती है। एल्स गो विद व्हाट आई एम टेलिंग यू, न्यू टेक्नोलॉजी इज पॉजिटिव, बेटर देन द ओल्ड वन, तभी वो दी है, तभी उसका क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं होता। अगर न्यू टेक्नोलॉजी खराब होनी होती तो क्यों होता। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक क्वेश्चन आएंगे कंपैरिजन और इंटरचेंज के। इसका क्या मतलब है, जैसे कि AR एंड VR पे क्वेश्चन आना, जैसे कि LTE एंड वोल्टी पे क्वेश्चन आना, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा क्या होंगे, आपके इंटरचेंज कर दी जाते हैं, ठीक है। तो बोथ बी वेरी केयरफुल, और आपको सिर्फ पढ़ के समझ में आ जाएगा, ये उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, डोंट नीड प्रायर नॉलेज, नो, यू विल रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड, वहीं के वहीं क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। AR का स्टेटमेंट VR में, VR का AR में, LTE का वोल्टी में, वोल्टी का LT में, ओके। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, दिस इज एन एक्सटेंशन, ओके। इंटरचेंज और भी चीज़ों में किया जाता है, जैसे एक वहाँ पे किया था, कहाँ, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्मगलिंग, ऐसे करके क्वेश्चन आया था ना, वहाँ पे भी देखो इंटरचेंज था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड रेट्रोवायरस एंड अडिनोवायरस, उसमें भी क्या था, इंटरचेंज था। दे विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस ऑफ इंटरचेंज। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ों की बात कर रखी है। इसी साल देख लो, इसी साल लोग बोलते हैं कि यूपीएससी ने ये सब खत्म कर दिया है, यूपीएससी भी नहीं करता, तो क्यों आ रहा है फिर ये। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स, ओके। ऐसी चीज लास्ट में चलती हैं सनसनीखेज बना के, इन चीज़ों की वजह से बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। प्लीज डोंट गो विद दैट। एक बात बताओ, लास्ट ईयर भी ये चीज़ पढ़ा रहा था मैं, फिर 2023 में यूपीएससी ने क्यों ब्रह्मोस वर्सेस, मतलब ब्रह्मोस का क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इनमें क्यों कंपैरिजन दिया और क्यों इंटरचेंज कर दिया फिर दोबारा से, अगर इतना ही ज़्यादा वो था तो। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, देयर विल बी अ वेरी फ्यू पीपल हु विल कॉन्फिडेंटली लर्न दीज थिंग्स, अप्लाई दीज थिंग्स। नहीं देता ना, फिर यूपीएससी एलिमिनेट कर देता इस साल भी इस चीज़ को। देखो, अगर आपको नॉलेज ही है, अगर आपको पता ही है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5 बैलिस्टिक है कि क्रूज है, इंटरकॉन्टिनेंटल कौन सी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। तब तो नॉलेज को बैक करना ही है। पहली चीज़ तो नॉलेज है ही, ये कौन मना कर रहा है दुनिया में कि नॉलेज को अप्लाई नहीं करना है। नॉलेज हैज़ टू बी अप्लाइड, नहीं तो पढ़ाई बेकार है ना अपनी। नॉलेज हैज़ टू बी अप्लाइड, दैट इज अ कंपल्शन, दैट इज अ कंपल्सरी थिंग। बट जहाँ नॉलेज नहीं है वहाँ क्या, हाँ, अगर 30 क्वेश्चंस में नॉलेज हो तो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। गेट दिस थ्रू योर हेड, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द 6th वन नाउ, एमिशंस। 99% क्वेश्चंस में एमिशंस में आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, मतलब करेक्ट होगा कि ये चीज़ ये एमिट करती है, हाँ जी, ये इंडस्ट्री से ये निकलता है, हाँ जी, ये निकलता है, हाँ जी। बिल्कुल, आपको नहीं ज़्यादा सोचना है। SO2 यहाँ से निकलता है, हाँ जी, NO2 यहाँ से निकलता है, हाँ जी। एक छोटी सी एक्सेप्शन यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से दे रहा है, बहुत छोटी सी एक्सेप्शन, दिखे तो ठीक, चेज मत करना, इसको चेज करने मत जाना, है ना। अगर बिल्कुल बिल्कुल दिख जाए, सामने दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है, होम बेस्ड। होम बेस्ड का क्या मतलब होता है कि यूपीएससी ये बोलेगा, मैं समझाता हूँ, यूपीएससी ये बोलेगा कि ये वाला जो एमिशन है ये इन 5 चीज़ों में से हो रहा है, उसमें से एक चीज़ लिखी होगी हाउस होल्ड और अवंस,
है ना। या फिर एक क्वेश्चन में 5 चीजें दी होंगी और उनमें से एक चीज लिखी होगी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, नहीं ये भी नहीं, जो दिया था फर्नीचर, हाँ हाउस होल्ड फर्नीचर। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को यूपीएससी इनकरेक्ट कर रहा है। हालांकि अगेन यूपीएससी बहुत ही टफ पाथ पे ट्रेड कर रहा है वाइल डूइंग दिस, कभी भी फॉलो ऑन हो सकता है, बट यूपीएससी है भाई, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको डायरेक्टली ही दिख जाए और आपको समझ आ रहा है कि यार यहाँ पे ट्रैप है, तो ट्रैप हो ना, प्लीज डोंट गो चेजिंग यार, है ना। नहीं तो एमिशंस में सीधा मारना, बिल्कुल आगे बढ़ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, एक गलत भी हो गया तब भी नेट पॉजिटिव में बैठे हो। गॉट इट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज अ थिंग दैट यूपीएससी डज विच इज एडिंग एंड ऑगमेंटिंग। इसका क्या मतलब होता है, एक स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट बना रहा है, उसमें फिर लगाएगा एंड, लगाएगा नॉट दिस, फिर लगाएगा एक और स्टेटमेंट बनाएगा, फिर बोलेगा बट नॉट दिस। प्रधानमंत्री ये काम कर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं, सोलर पंप ये चीज करती है लेकिन ये चीज नहीं करती है। बात सिंपल सी इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा कॉमन सेंसिकल चीज क्या है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, जो वीडियो दिख रहा है, सुरेश इज अ गुड स्टूडेंट बट नॉट अ गुड फ्रेंड। अरे सुरेश की तारीफ हो रही है ना भाई, स्टेटमेंट सुरेश की तारीफ के लिए बना था ना, तो करने दो ना। वो बट नॉट लगा के उसको एडिशनली इनकरेक्ट बनाया जाता है। ओके, 2 स्टेटमेंट बना सकता था एग्जामिनर, नहीं, उसको उसी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाना था। तो दैट इज वाई दीज एंड नॉट बट नॉट की चीजें आ जाती हैं, एज वेल एज बट नॉट, ठीक है। ये सब चीजें ना, दीज कंकैटिनेशंस, दीज ऑगमेंटेशंस, दीज एक्स्ट्रा एडिंग्स। अब बताओ, इस साल सेम टू सेम एक बट नॉट वाला क्वेश्चन था, वो गलत था, सीधा स्टेटमेंट एक जगह आया, वहीं की वहीं गलत था। क्यों आया फिर, ये नहीं आना था। अगर सब कुछ एलिमिनेट ही हो गया, सब मत पढ़ो इन चक्कर में, लास्ट का टाइम है, कॉन्फिडेंस हाई रखो, बहुत हाई रखो कॉन्फिडेंस को, ठीक है। ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मिनिस्ट्री गलत होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री इनकरेक्ट होती है। अगर आपको नॉलेज से पता ही है कि मिनिस्ट्री ये मैंने पढ़ी है, करेक्ट है ना, मैंने पढ़ी ही है, पक्का पढ़ी है कि ये वाला काम ये वाली मिनिस्ट्री कर रही है, मैंने पढ़ी है और यही दे रखी है, तो करेक्ट मानना, नहीं तो इनकरेक्ट मानना। अगर नहीं पता है तो इनकरेक्ट करके आएंगे, अगर मिनिस्ट्री आ जाती है तो। बात समझ में आ गई। अगर नहीं पता है, इफ यू डू नॉट नो, देन मिनिस्ट्री हैज टू बी मार्क्ड एज इनकरेक्ट। अरे इतनी सिंपल मिनिस्ट्री पूछता है यार, ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात हो रही होगी, ट्राइबल मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दे देगा। क्या मतलब है, अरे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब ही है उसका आंसर, वो जबरदस्ती कर रहा है यहाँ पे। इस साल भी इनकरेक्ट किया, 2023 में भी मिनिस्ट्री को इनकरेक्ट किया, क्यों कर रहा है फिर, हटा दे, सब कुछ ही हटा दे। क्या कर लेगा, सब कुछ हटा के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव बना देगा क्या, 100 के 100 में मारना सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव। ऐसे नहीं होता है, अपने आप को डाउट नहीं करते हैं। बहुत लंबे वक्त से सिखा रहा हूँ, 5-6 महीने से घिस रहे हैं, है ना, उसका पानी मत कर देना लास्ट में आके। बहुत कॉन्फिडेंट रहना, भी हाईली कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, मिनिस्ट्री इनकरेक्ट आती है। स्किल डेवलपमेंट की बात पूछी थी, मिनिस्ट्री दे दी थी कौन सी, पता नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या क्या दे दिया था, कौन सी आएगी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या, बिल्कुल है, अभी बने मिनिस्टर इसके नए, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर विद एवरीबॉडी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज़ को याद रखना, मिनिस्ट्री इनकरेक्ट आती है। देन ऑर्गेनाइजेशंस, अब इसको ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। देखो, एक सबसे पहले क्या है कि अगर एक ही क्वेश्चन है, उसमें पहले स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, दूसरे स्टेटमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, मतलब एक स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो 2 वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा और जो 1 वाला है वो करेक्ट होगा। रिपीट करूं, अगर एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, उनमें से एक स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दूसरी स्टेटमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो जो 2 वाला है वो गलत होगा, जो 1 वाला है वो ठीक होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, डन। देन अगर मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट ऐसे सिंपल दे रखा है, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, बस 2 ही स्टेटमेंट में एक सिंपल है, एक में ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी इसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट आर हाई, ठीक है। 2 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस हो गए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो क्लोजर टू मिनिस्ट्री वाली चीज ही, ऑर्गेनाइजेशन भी जब आती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत की साइड ही आती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होगा कि 2 ऑर्गेनाइजेशन आएंगे और ठीक हो जाएंगी। ये वाला तो मतलब इनफॉलेबल टाइप की चीज है। पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में एक बार यूपीएससी ने बस इसको सही कराया है, वो आया था G20 एंड पेरिस क्लब का क्वेश्चन, बस एक बार। तो क्या हो गया,
उस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन थी और वो गलत थी, हो गया आपका बैलेंस। नहीं आपको गड़बड़ करनी है ना, नहीं डाउट करना है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो कोई एक्सेप्शंस नहीं माननी इन चीज़ों में। नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, ये है पूरा प्योर एप्टीट्यूड, ये प्योर एप्टीट्यूड है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिस इज अ प्योर एप्टीट्यूड की चीज़। ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ये हमने इतने 5-6 महीनों में सीखी है जाके, जब आपके साथ बैठ के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर। देखो भाई, सबको पता है कि ह्यूमन ब्रेन की ना कैपेसिटी होती है, तो यूपीएससी ना, कोई भी यूपीएससी जैसी बॉडी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप दुनिया की हर चीज़ याद रखो, यूपीएससी तो कम से कम नहीं करती है। ओके, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए आपसे बोलूँ कि ये एक इंसान है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, बस इतना लिखा है, दिस पर्सन वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो हंड्रेड्स ऑफ लोग थे ना, तो क्या मैं 100 के 100 लोगों को याद रख, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोगों को याद रखूँ, 200-300, कितने लोगों को याद रखूँ मैं? इसको ऐसे सोचिए कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बनाने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है कि मैं पहले लिस्ट खोलूंगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की, फिर उसमें देखूंगा कोई ऐसा नाम जो इनमें से कहीं हो ही ना, और वो नाम पेपर में डालूंगा। अरे क्यों करूंगा मैं इतना? देयर इज एन ईजियर वे ना भाई, मैं जाऊंगा पहला नाम पकड़ूंगा, अच्छा ये नाम है, डाल दूंगा लाके, अगर सिंपल मेंबर ही पूछना है तो। और आपके लिए कितना मुश्किल है, आप ये 200-300 नाम याद करोगे? सो कंसिडर दीज थिंग्स टू बी करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है इस चीज का, क्रिटिकल टाइगर रिजर्व हैबिटेट का एरिया, अरेंज इट इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बोला था यूपीएससी ने, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब कैसे आप, मान लीजिए 50 टाइगर रिजर्व्स भी हैं, मान लीजिए 50 से ज्यादा है, बट मान लीजिए 50 भी हैं, उन सबको कैसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करोगे? नॉट जस्ट बाय देयर एरिया बट ऑल्सो ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया इनसाइड देम। उस मैनर में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करने हैं। बिल्कुल फालतू भाई नहीं करना है। क्या था इसका आंसर? जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, वही इसका आंसर। नेशनल पार्क का क्वेश्चन था शायद, जो भी, मतलब देख लेना एक बार। नागार्जुन सागर सिरिसलम वाले की बात कर रहा हूं, वहीं की वहीं करेक्ट। और देख लो, दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स ऑफ पाकिस्तान। अरे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हजारों 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 पेजेस की डिबेट्स होती हैं, हजारों हजारों पेजेस की डिबेट्स होती हैं। तो क्या वो ऐसी, मतलब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आप हजारों पेजेस की डिबेट याद करो? नहीं, ये करेक्ट होगा। ओके, नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत प्योर एप्टीट्यूड है, ये प्योर एप्टीट्यूड जिसका डेवलप होगा वो ऐसे क्वेश्चंस में, इतने टफ क्वेश्चंस में बटर थ्रू नाइफ निकलेगा, नाइफ थ्रू बटर, सॉरी, बटर थ्रू नाइफ भी एक ही बात है, मजा आना चाहिए आखिर में। खैर, द पॉइंट इज दैट प्लीज रिमेंबर सच अ थिंग। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग विच इज डेटा। ओके, देखो, पहले सबसे पहला रूल समझ लो, इफ नॉट नोन, मतलब अगर नॉलेज नहीं, अगर आपको नहीं पता है, इनकरेक्ट है, डेटा इनकरेक्ट है, सिंपल है। 2023 वाले पेपर में कम से कम 5 स्टेटमेंट्स में डेटा था, 5 इनकरेक्ट थे, 5 से ज्यादा ही थे। सीधा प्योर इनकरेक्ट, मारो गलत 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 गलत, कहीं फेल नहीं की, कहीं फेल नहीं किया, ठीक है। पूरे पेपर में अगर एक जगह कहीं डेटा आ भी जाता है, डज नॉट मैटर। मैंने लास्ट ईयर जब भी वीडियो बनाई थी ना भाई, मैंने बोल रखा है उसमें कि परसेंटेज आएगी तो गलत होगा। पेपर में 10 दिन बाद पेपर इस वीडियो के, 5 दिन बाद पेपर उस वीडियो के, उसमें सीधा सीधा एक्सपोर्ट एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया इज 3 पॉइंट इतना इतना, 5 पॉइंट इतना इतना, जो भी था, गलत परसेंटेज आई, गलत, सीधा सीधा गलत हुआ। अगर आपको डेटा नहीं पता है, अगर आपको स्पेसिफिकली वो डेटा नहीं पता है, उसको इनकरेक्ट मारना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डेटा नहीं पता है तो इनकरेक्ट करना है। ओके, अब आती है दूसरी बात, कभी कभी जो डेटा दिया जाता है वो रेंज में दिया जाता है ना। अगेन, अगर आपको ये रेंज का समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, आपकी जितनी भी बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से ही रेंज बैठ रही है, तो स्टिल यू कैन थिंक अबाउट मेकिंग इट करेक्ट। एल्स अगेन इनकरेक्ट मार देना, अगर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास भी, मेरी नॉलेज के आसपास भी नहीं है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें विजिबल एरिया होता है, अब उसका आपको थोड़ा सा आइडिया है तो उसके आसपास दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक नॉलेज से थोड़ा बहुत भी सामने लाई कर रहा है तो ठीक है, एल्स हटा दो। ओके, थर्ड, बहुत लोगों को होता है कि जैसे मान लो ऐसे दे रहा है कि नियरली इतना एरिया है ना, या फिर दिस डेटा है ना, क्लोज टू दिस डेटा। अगेन मैं बोल रहा हूं कि वैसे स्टेटमेंट्स भी इनकरेक्ट ही होते हैं।
समटाइम्स दे गेट करेक्ट, बट उसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे बोल रहा है कि जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है इन अ डेकेड और 2। अब ये डेकेड और 2 क्या है? दिस इज नॉट अ डेटा, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। ये प्योर अप्रोक्सीमेशन है भाई, साल 10 साल 20 साल, ये कोई डेटा नहीं है, कोई रेंज नहीं है, दिस इज प्योर अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ऐसी चीजें ठीक होंगी। जैसे मान लीजिए ऐसे बोलता है कि फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो CO2 नहीं था प्लैनेट पे, या CO2 ही था प्लैनेट पे, जो भी। तो फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो क्या होता है भाई? 1000 2000 3000 साल। देयर इज नो लाइक, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बना ना। दिस इज एब्सोल्युटली लाइक कहीं का कहीं, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ओके, ऐसी चीजें ठीक होंगी। यहाँ पे डेटा नहीं है, दिस इज प्योर अप्रोक्सीमेशन। डेटा होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट का डेटा है ना, इतना इंडिया 5% कर रहा है। रेनफॉल का डेटा कि भाई इंडिया में ऐसे 1000 मीटर की रेनफॉल हो रही है, 1000 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है हर जगह। डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल डेटा है ना। व्हेन आई से डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल डेटा। ओके, अब आते हैं कुछ और चीजों पे। देखो, अगर दो सिमिलर डेटा दो स्टेटमेंट्स में हैं तो उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। वन वुड बी करेक्ट एंड अदर वुड बी इनकरेक्ट। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि इस पर्टिकुलर सर्वे के हिसाब से केरला में ये इतना 60% है, और इसी सर्वे के हिसाब से राजस्थान में ये इतना 60% है। नाउ द पॉइंट इज दैट इसमें कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, दोनों नहीं होंगे। एंड दिस मेक्स थिंग्स इजियर एज पर द करंट पैटर्न ऑफ यूपीएससी कि भाई ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3। तो आपको समझ में आ गया कि एक तो कम से कम करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, राइट। तो वहीं की में आपका ओनली 3 तो खत्म हो गया। अब सबसे पहला स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव था, इन दोनों में से एक करेक्ट होने हो गया ओनली 2 आंसर। बात समझ में आई? समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स अपॉन। तो अगर दो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर दो डेटा दिए हुए हैं, नियरली 60%, नियरली 60%, नियरली 80, नियरली 80, ऐसा कुछ भी, उसमें से एक ठीक होगा एक गलत होगा। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट में एक डेटा है, दूसरे स्टेटमेंट में दो डेटा है, एक स्टेटमेंट में एक डेटा, दूसरे स्टेटमेंट में दो डेटा, इनमें भी सेम चीज लगेगी, कोई एक करेक्ट होगा कोई एक इनकरेक्ट होगा, कोई एक करेक्ट कोई एक इनकरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं उसमें समझा रहा था ना ऑर्गेनाइजेशन वाली में, अगर एक में एक ऑर्गेनाइजेशन है एक में दो ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, वैसे ही ये भी है, राइट। ये बहुत बड़ा वरदान है जब 1 ओनली 2 ओनली टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं ना, जो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। Vulnerable sections. Anything related to vulnerable sections should be positive. UPSC is a body that would always prefer empowering the vulnerable section, never hitting them below the belt with any of its statements. So any statement given around vulnerable sections, be it around the scheduled class, be it around the scheduled tribe, the transgenders, the women group, the old age group, ऐसे के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। ठीक है। अगर इसी में सिमिलरली क्या आ गया, एक तो आ गया कि वल्नरेबल के लिए पॉजिटिव है तो करेक्ट होगा, तो इसका कॉन्ट्ररी क्या है? अगर वल्नरेबल के लिए नेगेटिव आ गया तो इनकरेक्ट होगा। जैसे 2023 के पेपर में एक स्टेटमेंट था, फार्मर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वल्नरेबल सेक्शन। तो फार्मर्स के रिलेटेड एक स्टेटमेंट था कि भाई फार्मर जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो अपनी लैंड सरेंडर कर देंगे, भाई ये कैसी वल्नरेबल प्रोटेक्शन है? क्यों हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे? क्यों गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम लेके आएगी जहां पे किसानों को अपनी लैंड सरेंडर करनी पड़ रही है? वत्सले मातृभूमि भाई, क्या क्यों लैंड सरेंडर करेंगे हम? तो अगेन दिस विल बिकम इनकरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। वल्नरेबल के लिए पॉजिटिव, वल्नरेबल के लिए एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स भी है ना। जैसे मैंने दिखाया था आपको, राशन कार्ड की हेड कौन? टॉप फीमेल है ना, ओल्डेस्ट फीमेल। एलिफेंट का हर्ड कौन लीड कर रही है? फीमेल। तो ऐसे हमेशा ठीक होंगे, करेक्ट। किसको फ्री वो मिलनी चाहिए? लीगल एड, SC ST, ट्रांसजेंडर, करेक्ट। बात समझ में आ गई। सो दिस इज हाउ यू बाइफर्केट द वल्नरेबल सेक्शंस एंड यू गो बाय द आंसर। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? चले, पॉपुलिस्ट एंड गवर्नमेंट सपोर्टिव स्टेटमेंट्स, इसका क्या मतलब है? जो भी स्टेटमेंट ऐसे दिखेगा कि यार ये यहाँ पे ना गवर्नमेंट की थोड़ी तारीफ हो रही है, या गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, कोई चीज है, उसको सही डायरेक्शन दी जा रही है, एक पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं करेक्ट होने के।
यार मतलब गवर्नमेंट के ना अगेंस्ट नहीं जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं ये लोग, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ बॉडी दैट वर्क्स विद द गवर्नमेंट, राइट। तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती हैं चीज़ें, समझ आ गई बात। देन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, द स्टेट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये कि यूपीएससी क्या करता है कि जिन चीज़ों में जो कुछ स्टेट लिस्ट की चीज़ें हैं ना, वो देगा और बोल देगा कि इन पे रूल सेंटर बनाएगा, बोल देगा कि इन पे रूल स्टेट नहीं बना सकता, बोल देगा कि इनकी खराबी के लिए सिर्फ स्टेट जिम्मेदार है। तो मतलब बेसिकली स्टेट के अराउंड चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसी 5-6 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, बाकी आप भी देख लेना, लैंड, लॉ, एग्रीकल्चर, हेल्थ, प्रिजन, मिनरल, माइनर मिनरल्स। तो ऐसे माइनर मिनरल की माइनिंग के ऑप्शंस स्टेट कर सकती है ना। फिर लॉ के ऊपर आया था वो वाला क्वेश्चन इसी साल 2023 में, वो फोर्स वाला, कि हम ये वाली फोर्स बनाते हैं, ये वाली फोर्स खड़ी करते हैं, ओके। देन प्रिजन के ऊपर प्रिजन मैनुअल, प्रिजन रूल्स, राइट, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। हेल्थ लिस्ट इसी बार क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, सारी जो हेल्थ खराब कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई स्टेट लिस्ट के अराउंड कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं और स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, उसी हिसाब से चलना। होम गार्ड फोर्स थी वो, होम गार्ड वाली, हाँ याद आ गया, होम गार्ड वाली, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना भाई, स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो स्टेट विल बी दी अथॉरिटी देयर, है ना। लेकिन ऐसे मत कर देना कि जैसे ऐसे बोल दे कि इंडिया में जो भी प्रिजन की खराब हालत है वो सिर्फ स्टेट्स की वजह से है ना, स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, डोंट डू दिस, ओके। चले आगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द स्टेट लिस्ट। देन ओके, दिस इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक द पास्ट कंडीशंस टू द प्रेजेंट पॉलिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जैसे क्या बोलेगा कि प्रिजन मैनुअल आया था 18 फलाने फलाने में, अब एक स्टेटमेंट में ये देगा इसके बारे में, कुछ सेकंड में देगा कि आज के टाइम पे जो प्रिजन्स हैं उनको ये गवर्न करती है, या फिर ऐसे बोलेगा कि ये जो इसमें लिखा था कि जो प्रिजन्स हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स गवर्न करेंगी, ठीक है। अरे भाई मैं क्यों जाके, यूपीएससी में से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जाके कोई 18th 19th सेंचुरी में कोई एक्ट आया था उसके प्रोविजंस पढ़ूं? अरे नहीं कर रहा एक्सपेक्ट, ये एप्टीट्यूड है भाई, इसी का नाम एप्टीट्यूड है। ये क्या है, ये देखना चाहता है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आज के टाइम पे भी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स ही प्रिजन्स को रूल करती हैं, प्रिजन्स पे रूल्स बनाती हैं, मैनेज करती हैं, रेगुलेट करती हैं, तो उस टाइम भी वही कर रही थी, हो गया काम। सिमिलर क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिजर्व थे, ट्रांसफर्ड थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आज के टाइम पे देख लो, वो वाले सब्जेक्ट जो आज के टाइम पे सेंटर संभाल रहा है उस टाइम पे गवर्नर जनरल संभाल रहा था मैक्सिमम। यूपीएससी जो पूछेगा एटलीस्ट उनमें तो वही आएगा। आज के टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही है उन टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट संभाल रही थी। समझ आ गई बात। तो लिंक द पास्ट कंडीशंस टू द प्रेजेंट पॉलिसीज, लिंक द पास्ट कंडीशंस टू द प्रेजेंट पॉलिसीज, क्लियर। देन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एनीथिंग दैट इज एम्पावरिंग द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की पॉजिटिव में जो भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ग्राम सभा की पावर पूछ ली, ग्राम सभा की पावर दे दी कि भाई ये चीज़ ना ग्राम सभा कराती है, इस पे डिसीजन मेकिंग ग्राम सभा करती है, करेक्ट होगा। इस साल भी देखो जब व्हेन द क्वेश्चन अराउंड द पेसा थिंग केम, एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल्ड, मतलब इसमें कि शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसके अराउंड क्वेश्चन था, है ना। तो बोला था ना उसने कि जो बिल्कुल छोटा ब्लॉक है वो क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट द ग्राउंड लेवल इज क्या। तो अगेन दैट वाज करेक्ट स्टेटमेंट। तो बहुत जगह ऐसा होगा कि जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी जाएगी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाएगी, ऐसे स्टेटमेंट्स करेक्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, वो है चेक द एप्लीकेबिलिटी टू इंडिया। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आजकल बहुत ये मतलब ऐसे बच्चे ना गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मान लो बोल रहे हैं लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशन है, सपोज कर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया पे चेक करो। मान लो ऐसा पूछता है, एक स्टेटमेंट है कि इफ जीरो लॉ इज इक्वल टू 100% लिबर्टी, मान लो ऐसा करके स्टेटमेंट है, इंडिया पे अप्लाई करो। अगर इंडिया में जीरो लॉ करते हैं हम, है ना, कोई भी लॉ ना रहे, ट्रैफिक का लॉ ना रहे, मर्डर का लॉ ना रहे, क्राइम का लॉ ना रहे, तो क्या वो 100% लिबर्टी है क्या? फिर मतलब बढ़िया है, फिर तो मतलब इंडिया में कोई कानून होना ही नहीं चाहिए था। तो इंडिया में तो नहीं अप्लाई हो रहा है ना ऐसी कोई चीज़, तो फिर इसमें एक स्टेटमेंट आएगा कि इफ देयर आर नो, अगर जीरो लॉज हैं तो जीरो लिबर्टी है। अब इंडिया में लगा के देखो इसको, आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ इंडिया में अप्लाई हो रही है कि भाई हाँ, अगर इंडिया में जीरो लॉस कर देंगे तो जीरो लिबर्टी रह जाएगी लोगों के पास, फिर तो कोई किसी का मर्डर करे, फिर कहीं की लिबर्टी, हुलीगैनिज्म है वो, तो एनार्किज्म है। जीरो लॉ का मतलब तो एनार्किज्म हो गया ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान से, है ना।
तो येस दिस अप्लाइज टू इंडिया, दिस डजंट अप्लाई टू इंडिया, तो मार दो। अगेन क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, करेक्ट। इंडिया का देखो, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कि नहीं है, हाँ जी है। क्या देगा कि जो कोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। अरे गलत काटो, इंडिया में कर सकती है ना भाई, इंडिया पे अप्लाई हो रहा है ना, इंडिया में कर सकती है ना। बस क्या ये स्टेटमेंट इंडिया में अप्लाई हो रहा था कि जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकती, नहीं तो हटा दो। ओके, सो चेक इट्स एप्लीकेबिलिटी टू इंडिया। जब भी ऐसे एक वाइड क्वेश्चन आए पॉलिटी का या किसी भी ऐसी चीज का, एक वाइड टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ रहा है कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, है ना, फुल कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी पे क्वेश्चन आया, तो मैं कैसे सॉल्व कराता हूं, इंडिया के रेस्पेक्ट में देख लो, है ना, इंडिया के रेस्पेक्ट में देख लो। चेक एप्लीकेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू इंडिया प्लस चेक एप्लीकेबिलिटी इन डेली लाइफ। यार ये भी लिखना था मुझे, लिखना भूल गया मैं, तो ऐड कर लेना। चेक एप्लीकेबिलिटी इन डेली लाइफ। जैसे मान लो वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, क्या है ये, इसमें क्या पूछेगा, इसमें बोलेगा कि अगर आप बाहर से ज्यादा डील कर रहे हैं तो आप ज्यादा वल्नरेबल हैं। अरे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मेरे पास बाहर की दुनिया का लोन है, मान लो मैं अपने फादर से लोन ले रहा हूं, मैं अपनी मदर से लोन ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और मैं बाहर अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले लूं, वो तो कल आ जाएगा, कल घर पे बैठ जाएंगे आके, मतलब दैट सॉर्ट, समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, और इसलिए मेरे को रिश्तेदार बुरा मान के बैठा है। खैर द पॉइंट इज दैट करंट अफेयर कह रहा हूँ, डेली लाइफ, है ना, चेक द एप्लीकेबिलिटी टू डेली लाइफ। सीए से करंट अफेयर नहीं है ये, चेक इट्स एप्लीकेबिलिटी टू डेली लाइफ, है ना, डेली लाइफ पे चेक करो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो करेक्ट है, नहीं हो रहा है तो इनकरेक्ट है। जैसे वो आए थे ना क्वेश्चंस की सप्लीमेंट्री गुड्स, है ना, अगर कोई मान लीजिए ऐसे टी है और शुगर है, अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है तो टी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना भाई, लोग कैसे चीनी डाल नहीं पा रहे हैं चाय में, तो क्या होगा, अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो कार, हमेशा कार की सेल पे हिट लगती है, लोग ये सोचते हैं ना भाई इतना पेट्रोल का पैसा कौन खर्च करेगा। तो ये क्या है, डेली लाइफ की चीजें हैं, राइट। तो ये वाली चीज अप्लाई करनी है मोस्टली पॉलिटी में, ये वाली चीज अप्लाई करनी है मोस्टली इकोनॉमी में। बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आएंगे, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी। एक आएगा रेपो रेट इंक्रीज कर दो, एक आएगा रेपो रेट डिक्रीज कर दो, इनमें से ही आंसर होगा, इनमें से कोई एक ही आंसर होगा जनरल केसेस में, है ना, जनरली इनमें से कोई एक ही आंसर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो जैसे मान लो ऐसे पूछा इसने कि गवर्नमेंट ना इनमें से क्या नहीं करेगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आया ये सारे एग्जांपल पीवाईक्यू के बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट इनमें से क्या नहीं करेगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहले क्या बोलेगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई अब इनमें से कोई एक ना एक मॉनेटरी पॉलिसी तो आएगी। आरबीआई बोल लो यार, आरबीआई बोल लो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई में से क्या करेगा, तो एक्सपेंशनरी करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शनरी करेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी करेगा, तो ये आंसर हो गया, चाहे इसके अलावा कुछ भी बोल रहा हो फिर। ओके, देन सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स का भी बहुत अच्छा सीन है, प्लीज समझो, डिफरेंस समझ में आया। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। जैसे मान लो पूछ रहा है कि इनमें से किस क्या होने के बाद जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, इनमें से किसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। मान लो पहला स्टेटमेंट है सीआरआर, पहला स्टेटमेंट है कि सीआरआर को बढ़ाने की वजह से, सेकंड स्टेटमेंट है एसएलआर को बढ़ाने की वजह से। तो ये क्या है, अब ये क्यों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर जब बढ़ते या घटते हैं, व्हेन दे इंक्रीज और व्हेन दे डिक्रीज, इनका ना सेम इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे, सेम इंपैक्ट होता है मनी सप्लाई पे। अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया तो ज्यादा पैसा बैंक में रखा जाएगा, तो बाहर पैसा कम जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, करेक्ट। तो सेम केस सीएलआर का भी है, सेम केस डिक्रीज होने का है। तो ये क्या है, दीज आर आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इंपैक्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, तो इनमें जब सेम आफ्टर इफेक्ट है, सेम इंपैक्ट होता है, तो अगर ये इस तरीके से दे रखे हैं ना, सीआरआर इंक्रीजेस एसएलआर इंक्रीजेस, दोनों एक तरह से दे रखे हैं, दोनों के सेम इंपैक्ट है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। जब ये दोनों नहीं हो सकते तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कोई एक आंसर नहीं हो सकता, होंगे तो दोनों होंगे, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे, करेक्ट। तो इनमें से कोई एक आंसर नहीं हो सकता अगर सेम स्टेटमेंट है ना, सीआरआर भी इंक्रीज कर रहे हैं, एसएलआर भी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर इस तरीके से है। अगर उल्टा है, सीआरआर इंक्रीजेस एसएलआर डिक्रीजेस, तो अलग बात है। बात समझ में आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स की बात समझ में आ गई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत सिंपल है, ये कंसिस्टेंटली या स्टेडिली, है ना। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि भाई कंसिस्टेंटली, स्टेडिली, है ना, लंबा,
ये चीज़ ऐसे ग्रो कर रही है ना, जो ये पर्टिकुलर दाल है ये कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से ज़्यादा ग्रो करती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कंसिस्टेंटली स्टेडीली गलत काट दो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, कंटेम्प्ररी गलत है ना, अकबर का ये कंटेम्प्रेरी था, फिरोज शाह तुगलक का ये कंटेम्प्रेरी था, हर्षवर्धन का ये कंटेम्प्रेरी था। जनरली 90% केसेस में अगेन नॉलेज है, पता है कि कंटेम्प्रेरी था, अलग बात है, नहीं पता है गलत मारना है। सिंपल है यार फंडा, नॉलेज है तो कोई बात ही नहीं है, नॉलेज नहीं है गलत मारना है। क्वेश्चन पेपर में बैठ के घबराना मत, इन चीज़ों को अप्लाई करने में, अपनी नॉलेज को अप्लाई करने में मत घबराना, और नॉलेज नहीं है तो इन चीज़ों को अप्लाई करने में मत घबराना। नेट बहुत अच्छा पॉजिटिव आता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, एटिमोलॉजी, ब्रेक द वर्ड्स, है ना, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार समझाया मैंने। क्या है, अगर कुछ भी पूछ रहा है कि भाई ये वर्ड का क्या मीनिंग है ना, इसमें एटिमोलॉजी प्लस वर्ड एसोसिएशन दोनों चीज़ें लिख लो, ये दो ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है, एटिमोलॉजी और वर्ड एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है, एक वर्ड दिया है यहाँ पे, उसको ढूंढो, उसको ब्रेक डाउन करो कि ये किस ऑप्शन में मिलेगा, इसके आसपास क्या ऑप्शन है, ऑलवेज लुक फॉर दैट। मान लो एम स्ट्राइप्स, एरियल मेटाजिनोमिक्स, P2 या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, क्या है ये सब, यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन हो रहा है ना। एम स्ट्राइप्स है ना, मोबाइल या फिर जो भी, स्ट्राइप्स किस पे मिलते हैं, टाइगर पे, आंसर आ गया। एरियल मेटाजिनोमिक्स, एयर से जब हम डीएनए को कलेक्ट करें, एरियल मेटाजिनोमिक्स। R2 रिसाइकिल एंड रीयूज, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। वर्ड एसोसिएशन, एटिमोलॉजी, ब्रेक द वर्ड, ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्ड को एसोसिएट करो नीचे, है ना, बीटा न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट करके देखो, वर्ड को एसोसिएट करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चंस पे करोगे, किसी एक में हो रहा है, कहीं तो समझ में आएगा, करके तो देखो, ठीक है। बस उतना नेट पॉजिटिव आता चला जाएगा, आखिर में आके इतना इनफ बन जाएगा कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, ओके। एटिमोलॉजी या ब्रेकिंग द वर्ड। देन कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसा लिखा होगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है या इम्पैक्ट करता है, एनेबल करता है, ये वाले पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट होंगे। बहुत ही लाइट टोन्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। क्यों ऐसा, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि ये एक प्रिंसिपल है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द फंडामेंटल राइट्स, या द फंडामेंटल राइट्स, द प्रिंसिपल बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे करेक्ट होगा भाई, रिफ्लेक्ट है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत छोटा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है, चांद का रिफ्लेक्शन धरती पे पानी में पड़ता है भाई। इन्फ्लुएंसेस, महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल से रविंद्रनाथ टैगोर, क्यों नहीं होंगे। अरे मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, स्लाइटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, कुछ तो हो सकते हैं। या महात्मा गांधी जी ने आके बोल ही दिया कि भाई सुनो बात, मैं ना इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं हूँ, आज से 50-100 साल बाद क्वेश्चन आएगा मेरे बारे में, गलत मार देना, मैं नहीं हूँ इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत छोटा सा पोर्शन है इन्फ्लुएंस होना, हो सकता है कोई भी इन्फ्लुएंस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज विल हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। MSP दे देगा, उसमें बफर स्टॉक दे देगा, ये राशन दे देगा, सब करेक्ट है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा भी इंपैक्ट कोई क्रिएट कर रहा है तो कैसे डिनाई करोगे कि नहीं ये तो बिल्कुल इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता, गवर्नमेंट MSP के साथ कुछ भी कर ले, राइस के प्राइस पे तो नहीं इंपैक्ट पड़ सकता, फालतू की बात है ना भाई, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत डीप जाके ऑब्जर्व करी थी, ये समझ लो इसको। कैसा क्वेश्चन आएगा, एक एक्ट के बारे में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना, चाहे ऊपर लिखा भी ना हो, लेकिन आपको ना टोन दिखेगी क्वेश्चन की, कह रहे क्वेश्चन ना किसी एक्ट के बारे में चल रहा है, उसमें से ना कुछ, उसमें स्टेटमेंट्स में ना कुछ प्रोविजंस लिखे होंगे, तो उसमें से बोलेगा कि हाँ ये प्रोविजन इस एक्ट में दे रखा है, सही हो जाएगा। एक स्टेटमेंट में क्या करेगा ना, 2-3 स्टेटमेंट्स भी देगा और उसमें से या 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा। एक स्टेटमेंट में क्या करेगा, सोर्स को चेंज कर देगा, कोई प्रोविजन लिखेगा और बाद में बोलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या ये तो किसी एंटायरली डिफरेंट एक्ट में है। अरे जब ये कोई डिफरेंट चीज है बिल्कुल, किसी डिफरेंट एक्ट में है बिल्कुल, तो इस एक्ट के अंदर क्यों डाल रखा है भाई, क्यों डाल रखा है फिर यहाँ पे, बताओ। लॉजिकल सी बात है ना ये। तो हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स चेंज कर देगा। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक था RBI एक्ट का क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन RBI एक्ट पे बेस्ड था। RBI एक्ट का सेक्शन है जिसके अंदर ना सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्शंस दे सकती है। RBI एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, क्या बना दिया स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू RBI, गलत हो गया भाई, ठीक है। सिमिलरली एक कोर्ट इंक्वायरी एक्ट ऐसा कुछ एक एक्ट आया था, उसमें पहले 2-3 स्टेटमेंट्स बढ़िया है ना, प्रोविजंस दे रखे हैं, फिर एक स्टेटमेंट में दे दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई क्यों,
इसके बारे में स्टेटमेंट चल रहा है ना, तो इसी में डिफाइन होगा। फिर इसके क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कोर्ट इंक्वायरी एक्ट जो भी इसका नाम था, इंक्वायरी जजेस जो भी, क्या कर रहा है फिर ये यहाँ पे। हाँ, एक कोर्ट एक्ट था, एक जजेस इंक्वायरी एक्ट था। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग क्वेश्चन है ये। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट था, डिटेल्ड प्रोसीजर रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफ जजेस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इसका क्या करूँ, हाँ क्या करूँ इसका तो ठीक है, ये बातें समझनी है। पेपर में अगर कहीं भी ऐसा दिखे तो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, डरना नहीं है। पेपर आपके हाथ के नीचे है, ओके, इट इज अंडर योर हैंड, आपके हाथ के नीचे है पेपर। उसकी वही औकात होगी तभी आपके हाथ के नीचे है ना, नहीं तो सिर के ऊपर बैठा होता। ओके, याद रखना है बात। खैर, अभी देखो पिछले वाले से जैसे मैंने समझाया, जहां भी लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन दे रखी है। इन चीज़ों पे भाई बहुत ही चौकन्ने हो जाना। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है तो ठीक है, नहीं तो गलत होंगे ये। ठीक है, इसके तो एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, एम्पल नंबर ऑफ। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट हैज टू सिट थ्राइस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया if a person is jailed for इतने years then he will not be able to participate, as per the constitution of India president calls for this। तो बहुत 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 जगह है, बहुत जगह। इस बार भी है ना, अगेन इस बार भी गलत किया है यूपीएससी ने। इस बार 2023 में भी दिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां भी गलत किया। क्यों किया भाई, फिर हटा ही देता है ना, सब कुछ एलिमिनेट हो गया, दुनिया तबाही हो गया, एपोकलिप्स आ गया है। ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, क्लियर। आई होप यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन दीज थिंग्स। चलो एक बात समझो मेरी, ये पता नहीं मैंने मैथ सेशन में समझाया था नहीं समझाया था, समझाया ही होगा। अगर किसी क्वेश्चन में 5 या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब करेक्ट नहीं होंगे। वैसे तो ये 4 और मोर पे भी काम करने लगा है, और 4 और मोर कैसे, फैक्चुअल है ना, 4 और मोर फैक्चुअल डायरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे ऐसे बोलेगा कि सोलर फ्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, और नीचे 6-7 स्टेटमेंट दे देगा, और फिर ऑल एक ऑप्शन होगा, इसमें से नहीं होगा इसका आंसर ऑल। इसमें से बस एक ढूंढो, सबसे पहले एक ढूंढो कोई जो बहुत ही अब्सर्ड लग रहा है, वहां से काटना शुरू करो, कटते जाएंगे कटते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली पूछेगा कि इनमें से किस किस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, 5 दे देगा, है ना, 5 दे देगा, नहीं है ऑल इसका भी आंसर ना, नहीं होगा इसका आंसर ऑल। फिर क्या पूछेगा, इनमें से कौन से आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसके नीचे 10 नाम दे देगा, 10 तो नहीं देगा, मतलब ऐसे 6 नाम दे देगा, ऑल बोल देगा, नहीं है ऑल, नहीं है, टोटल ही 6 उसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स है, उसमें से 6 के 6 नहीं पूछ रहा है वो, इसमें से 3-4 ही निकलेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। फैक्चुअल डायरेक्ट है ना, फैक्चुअल डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि किसी भी नॉर्मल से सेट में 4 से मैं डायरेक्ट तो आप गलत काटना शुरू कर दो, वो नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि वहाँ भी मुश्किल ही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव ना, 5 में तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है, बट 4 में मतलब एटलीस्ट फैक्ट में। जैसे मान लो क्वेश्चन आया था, इसी साल आया था, इसी साल S3I इनिशिएटिव में इनमें से क्या क्या कवर्ड है, ऑप्शंस थे अफोर्डेबल हाउसिंग, एनर्जी, और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, और हेल्थ। तो 4 आ गए है ना, ऑल 4 करेक्ट हो नहीं सकते, 3 करेक्ट थे, ये वाला गलत था, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई, क्लियर हो गया सबको, डन। इसका एक और स्टेटमेंट, एक और चीज याद दिलाता हूँ। जैसे मान लो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन वाला क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट्स थे उसमें, है ना। एक में इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बता रखा था, लास्ट 2 में केरला, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश से जब कंपेयर कर रखा था क्या ऑल द 4 इसका आंसर नहीं था ना, बस वैसी चीज़ है। ठीक है, तो जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिखे तो ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है जनरली, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब। ठीक है, अब आते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है जब भी कोई हिस्टोरिकल चीज़ लिखी हो पेपर में, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपली, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपली। न्यूनिस ने महिलाओं के बारे में बताया कि महिला उस टाइम पे रेसलर हुआ करती थी, ये हुआ करती थी, वो हुआ करती थी। भाई आते ही करेक्ट मारना है ऐसा चीज़ को, मतलब 1000% करेक्ट मारना है ऐसी चीज़ को, सोचना ही नहीं है। आप एक बात सिंपल सी सोचो, आपने न्यूनीज अगर 10,000 पन्ने लिख के गया तो क्या 10,000 पेजेस वो एग्जामिनर ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं भाई, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। अल बिरूनी ने कोई तो दे रखा था, 2023 के पेपर की बात बता रहा हूँ, पुरानी नहीं है, 2023 का ही है प्रोबेबली, 23 या 22 होगा, 23 का ही है मोस्ट प्रोबेबली। अल बिरूनी ने ये पर्टिकुलर चीज़ मेंशन की है। कैसे गलत काटोगे, कैसे गलत कर दोगे ऐसी चीज़ को भाई, कैसे? नहीं कर सकते गलत। गुप्ता एम्पायर में कुछ रीजन्स में स्लेवरी मिलती थी, अरे मिलती होगी ना भाई, कहीं एक घर में मिलती होगी, किसी ने कर रखा होगा उस टाइम पे एक स्लेव कैद। ठीक है, देशेर कथा से सॉन्ग्स इंस्पायर्ड थे, 1000% करेक्ट होना है, 1000%। अरे कोई बच्चा भी एक गाना इंस्पायर होकर बना दे यार देशेर कथा से, तो बन गया ना, हो गया ना इंस्पिरेशन। जरूरी है क्या वो हिस्टोरिकल आर्काइव्स में आ जाएगा? कुछ चीजें हिस्टोरिकली नॉन वेरीफाइबल भी तो हो सकती है, अनवेरीफाइड भी तो हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है ऐसी चीज़ों पे। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे करेक्ट मिलेंगे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको, बहुत सिंपली मार्क्स निकाल के ले जाओगे।
ठीक है, एक एक क्वेश्चन यूपीएससी ने कोई फालतू का बनाया था जिसमें अर्थशास्त्र का कुछ गलत कराया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो गलत, है ना। 5 क्वेश्चन ऐसे उसमें से एक गलत हो गया, क्या जा रहा है अपना, कुछ नहीं जा रहा अपना, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा ना अपने को, या तो गलत ही करके आओगे या तो स्किप ही करके आओगे, राइट। समझ में आई बात है। स्किप करने की टेंडेंसी बनती जाएगी तो 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, ठीक है। देन ये तो खैर दिस वॉज समथिंग दैट आई इन्वेंटेड 2-3 ईयर्स अगो। आज तो सब बताते हैं ये चीज़, बट 2-3 ईयर्स अगो जब हमने सबसे पहली बार चीज़ें करना शुरू की तब सबसे पहली बार ये बताई थी। GBW का नाम मैं बता देता हूँ आज, इसकी फुल फॉर्म है गोपाल बाबा वालंगकर। तो मुझे सबसे पहले जब ये चीज़ समझ में आई थी, ये वाला जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है, तो मुझे सबसे पहले समझ में आया था रीजनिंग इसकी, तो वो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तब समझ में आया था। तो जो क्वेश्चन मैं कर रहा था वो क्वेश्चन वॉज अबाउट गोपाल बाबा वालंगकर। शायद ये 2020 में या 2021 के पेपर में था, 2020 में था शायद, गोपाल बाबा वालंगकर। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द अननोन, है ना, द अननोन, द मिस्टीरियस। क्या मतलब इसका, देखो समझो, मान लो एक क्वेश्चन है किसी के बारे में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे नीचे 4 स्टेटमेंट्स हैं, उन 4 में से 3 जो है वो एब्सोल्युटली जेनेरिक हैं। एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली जेनेरिक, और एक जो है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे बिल्कुल ही अलग हूर की परी है, कहीं से पता ही नहीं कहाँ से आ गई, है ना, बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली यूनिक, नाम ही नहीं सुना इससे पहले। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। समझाऊं, एग्जाम्पल दूं, क्यों कर रहे हैं भाई यूपीएससी, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, दिस प्लस दिस, ये मिलके ये कहाँ में मिलता है। नीचे ऑप्शंस क्या थे, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टाइटेनियम। अरे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर लिख रहा था, इसके बाद स्टील लिख देता, बॉक्साइट लिख देता, क्यों नहीं लिखा। टाइटेनियम कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया टाइटेनियम, क्यों आ रहे 2023 में फिर ऐसे क्वेश्चन। टाइटेनियम मारो, सही आएगा आंसर भाई। ये चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और ट्रस्ट पे चलती हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे चलती हैं, है ना। पेपर में बैठ के या 4 लोगों की बात सुन के सब चीज़ों पे डबल गेस करना शुरू कर दोगे, हो गया काम। या अपने दिमाग में 4 चीज़ें आ जाएं भाई, नहीं करना ये सब, ठीक है। जो समझा रहा हूँ वो समझ के अप्लाई करके आओ, ठीक है। 2 बार देख लो ये वीडियो, 3 बार देख लो, अप्लाई करके आओ। देन द नेक्स्ट थिंग इज टफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ये भी हम लोगों ने इन्वेंट किया था 2-3 साल पहले। तो बेसिकली क्या है कि जब आपको दिखे कोई ऐसा वर्ड पेपर में जो ना आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली, है ना। जैसे मुझे नहीं पता था भाई टॉयलेटरीज का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं पता था रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, मैंने कभी अपने नॉर्मल से सेंटेंस में वाइल्स जैसी चीज़ें यूज़ नहीं की है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये चीज़ ना कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट की गई है, क्योंकि एग्जामिनर के अंदर इतनी भाई वो इतने बड़े विज्ञान विद्याता नहीं है कि बैठ के ऐसे ये वाली वोकैबुलरीज यूज़ करें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उठाई गई हैं, और जो चीज़ें उठाई जाती हैं वो करेक्ट होती हैं। जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, तीनों करेक्ट थे। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि ऐसे कोई हिंदी का वर्ड है ना, वट्टा किरुटल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के वोकैबुलरी में बोल रहा हूँ। कह रहे सर एंशिएंट इंडिया का आया था, कोई अजीब सा वर्ड था बींगड़ू बांगड़ू, और हमने तो करेक्ट मार दिया। नॉट लाइक दैट, है ना। इंग्लिश वोकैबुलरी में ऐसा कोई बहुत टफ सा वोकैबुलरी वाला वर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके 30। हाँ देखो यार, अगर मतलब लास्ट राउंड में कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप हिंदी में ग्लांस कर सकते हो। जैसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मतलब ठीक हुआ इस बार, वैसे उसका आंसर लोगों को नहीं पता चल रहा था, बट ऐसे मैंग्रोव्स के बारे में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा था, नहीं ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से मैंग्रोव एरिया या मैंग्रोव कहाँ से उगता, पता नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड मार्शी लैंड पे क्वेश्चन था, मार्श लैंड पे, हाँ। तो क्वेश्चन वॉज अराउंड मार्श लैंड। और मार्श लैंड का ना हिंदी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हिंदी वाले वर्जन में इसको पूछ रखा था इनमें से कौन सी कच्छ भूमि, ऐसे करके, एंड ऑप्शन में था रन ऑफ कच्छ। तो वही ऑप्शन ऑब्वियस है, फिर तो वही आंसर होने वाला है। तो करेक्ट, कभी कभी हिंदी में पढ़ने से फायदा मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसे लगे अगर किसी क्वेश्चन में, प्लीज डोंट मेक इट अ हैबिट, है ना, टाइम नहीं आपके पास, डोंट मेक अ हैबिट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, पेपर को कितने राउंड में करना है, OMR कब भरना है, कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर को कैसे पलटना है, कैसे यूज़ करना है, बीच के टाइम में क्या करना है, CSET का पेपर कैसे देके आना है, द एंटायर D-Day थिंग मैं आपको एक दिन के अंदर अगले दिन के अंदर करा दूंगा, ठीक है। उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना, सुन लेना, मत मिस करना, वो चीज़ें एग्जाम में हेल्प करेंगी। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कहीं दिखे तो टाइम आपके पास, तो ग्लैंस इन हिंदी
आपको आंसर मिले तो ठीक है। नाउ अगर दो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स हैं, दो बहुत ही क्लोजली रिटन स्टेटमेंट्स हैं, ओके, जैसे ऐसे पूछे कि FCI के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ती है ना, उसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल प्लस दिस, सेकंड भी ऐसे ही है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल प्लस ट्रांसपोर्ट, है ना, प्लस गोडाउन ऐसे है। तो मतलब क्या है कि यार ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल के अराउंड जा रहा है ना क्वेश्चन, तो ठीक है, इसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा ही होगा, मतलब एक ही हो सकता है करेक्ट, तो एक होगा ही होगा करेक्ट। तो जब वैसे दो बहुत ही सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स हो, 2023 में भी आया था किसी क्वेश्चन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, 2023 में भी किसी क्वेश्चन में था ये, बिल्कुल दो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स, उनमें से एक ही आंसर होगा। ओके, याद रखना। क्यों क्यों हो रहा है ये, क्या क्या कॉमन सेंस इसके पीछे? क्योंकि यार भाई 4 स्टेटमेंट बनाने हैं, कुछ भी बना देगा ना एग्जामिनर, क्यों स्पेसिफिकली ऐसा ही स्टेटमेंट बना रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, ना करे ऐसा। आगे बात समझ, ठीक है, तो कर रहा है तो इसका मतलब उन्हीं में से चाहता है ये। फिर अगेन दिस इज प्योर इन्वेंशन, ये इसी बार इन्वेंट किया था आप लोगों के सामने 2023 के पेपर डिस्कस करते हुए इसको बताया था मैंने। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये प्योर एप्टीट्यूड है भाई, प्योर एप्टीट्यूड, प्योर एप्टीट्यूड एग्जाम मतलब सीसेट है ये। तो इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट दिख जाएगा आपको। ऐसे कोई स्टेटमेंट्स आते हैं ना, स्टेटमेंट 1 इज दिस, स्टेटमेंट 2 इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट, ये रीजनिंग है फलाना डिमांड, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखेगा, 2 क्वेश्चंस में, सिर्फ 2023 के अंदर अंदर 2 क्वेश्चंस में ये चीज काम की थी। वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बिकम द पार्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, 2023 में क्वेश्चन आया था, यूएस एंड EU हैव स्टार्टेड कोई पर्टिकुलर मान लो XYZ चीज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, US एंड EU सेड दैट बाय XYZ दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है अभी, और इनमें से कोई एक ही इनकरेक्ट हो सकता है ना, कोई एक करेक्ट होना ही होना पड़ेगा। देखो समझो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो 1000% करेक्ट हो ही गया ना। क्यों, क्योंकि अगर ये इनकरेक्ट है तो ये तो इनकरेक्ट होता ही जाएगा ना फिर। US एंड EU इन XYZ सेड दिस, अरे तो जब XYZ है ही नहीं US और EU की, तो ये कैसे सही है फिर? अगर ये गलत है तो ये तो गलत हो ही जाएगा, एंड बोथ कैन नॉट बी करेक्ट, वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो द वन ऑफ द स्टेटमेंट लाइज इन द अदर स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट लाइज इन द अदर स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से देखना इसको, 2 क्वेश्चंस में था ये। फिर स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में एक और चीज आ रही है, अगेन प्योर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। August 7 is declared as National Handloom Day. It was done so that स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च डे कैन बी सेलिब्रेटेड, है ना। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बिल्कुल भाई बिल्कुल ऑब्वियस है ये, है ना, ये चीजें बिल्कुल ऑब्वियस हैं। अब अगर इसमें से कोई भी गलत बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि स्वदेशी वाला गलत है, तो फिर ये August 7 की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर क्यों दिया यहाँ पे ये? फिर आप ये कह रहे हो कि August 7 को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते तो हैं, लेकिन इसका स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। और पहला तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस डेज कमेमोरेट्स द स्वदेशी मूवमेंट, तो ये तो ठीक होना ही है, ये तो इसके अंदर ही है, इसका पार्ट है ये तो। बात समझ में आ गई, क्लियर है? जाके देख लो 2023 का पेपर उठाओ, ये 2-3 क्वेश्चंस देख लो, यहीं कहीं क्लियर हो जाएगा सारा फंडा। डन, समझ में आ गई बात। वन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट। चलो देन, हाँ ये एक टाइप होता है, दो वही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देगा, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज द रीजन ऑफ फर्स्ट। बोथ आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द रीजन ऑफ फर्स्ट। तो जो ये स्पेसिफिकल चीज है, बोथ आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट रीजन, ये ना बहुत ही मिनिमम बेयर केसेस में करेक्ट होगी। मिनिमम बेयर पूरे 2023 के पेपर में 2 जगह ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, सिर्फ 2 जगह ये आंसर था। उसमें से एक जगह वॉज वेरी ऑब्वियस, वो आपको तुरंत दिख जाएगी। उसमें क्या था कि इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से ज़्यादा हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट था कि हॉस्पिटल्स की मतलब ऐसी खराब हालत की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। अरे तो मतलब ये तो गलत है ना यार बात, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप क्यों डालोगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं क्यूरेटिव हेल्थ केयर, क्योंकि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, मान लो ऐसे दे रखा है। इसकी ये इसलिए है क्योंकि स्टेट लिस्ट में है हेल्थ। अरे यार ये क्या बात हुई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कुछ काम नहीं है क्या, लोकल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है क्या, ब्यूरोक्रेट्स का कोई काम नहीं है क्या, सिर्फ क्योंकि हेल्थ अगर स्टेट लिस्ट में है तो इसलिए पूरे इंडिया में हेल्थ खराब है? ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बहुत एविडेंटली दिख जाएगा कि भाई दिस इज नॉट द रीजन। और सेकंड में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, चाहे जिंदगी भर लगा लो दिमाग, नहीं दिखेगा। वो क्वेश्चन कौन सा था, कार्बन मार्केट।
कार्बन मार्केट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम स्टेट टू फ्रॉम प्राइवेट बॉडीज टू स्टेट। अब बोल रहा है कि ये करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है। ये आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा ही नहीं है पेपर में, है ना, और ये तुरंत दिख जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट जब आए और ये जो है बोथ करेक्ट बट नॉट रीजन, ये जनरली आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब ये कहाँ आंसर है एक्चुअली में, कहाँ आंसर एक्चुअली में सिर्फ एक ही जगह आंसर है ना, ये यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ये तो आंसर नहीं है पेपर में आपके लिए। तो पूरे 100 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज आंसर थी। समझ गए बात? सिर्फ 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, और वहां भी वो एविडेंटली दिख रहा है। क्लियर? तो ऐसी चीजों को ध्यान से देखना, अगर बिल्कुल एविडेंटली दिखे तो ही वो आंसर होगा, नहीं तो मत जाना उस ऑप्शन के लिए, हटा दो उस ऑप्शन को। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव, यार ये बहुत सिंपल और बहुत ही ब्रिलियंट चीज होती है, आपको ध्यान देना है। मान लो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या मिलेगा आपको कि ऐसे जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही सब्जेक्टिव से मिलेंगे, और फिर एक स्टेटमेंट बहुत हाईली ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 3 स्टेटमेंट बहुत सब्जेक्टिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैसे ऐसे मिलेंगे 3 स्टेटमेंट्स की तानसेन ध्रुपद बनाते थे, तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, तानसेन तो बहुत ही बढ़िया थे, तानसेन तो हिंदू गॉड गॉडेसेस के लिए गाते थे। चौथा स्टेटमेंट क्या मिलेगा? तानसेन को तानसेन अकबर ने बुलाया, तानसेन को तानसेन का टाइटल अकबर ने दिया। अरे भाई, क्या ऑब्वियस है ना कि यार ये सब तो ठीक ही होने और ये गलत होना है। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग एवर। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो चीजें हैं, ये जो 3 ऊपर दे रखा है ये सब्जेक्टिव, और जो नीचे दे रखा है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्वेश्चन आया था। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था? इंटरेस्ट कवरेज रेशो हेल्प्स बैंक्स इन फाइंडिंग दिस, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हेल्प्स इन डूइंग दिस। थर्ड स्टेटमेंट क्या था पता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो डिक्रीज ऐसे हो जाएगा, लेस देन 1 है इंक्रीज हो जाएगा। क्या है ये पूरा? ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ये क्या है? सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं। आगे बात समझ? तो whenever a question has a combination of a lot of subjective statements and one objective statement, the objective statement will most probably be incorrect and subjective statements will be correct. Clear? समझ में आ गया सबको? चलो, then there are some hidden answers. Hidden answers का क्या मतलब होता है कि एक ऑप्शन में वो पूछा था, दोबारा अगले ऑप्शन में रिपीट कर दिया, तो इनमें से किसी एक में वो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे सोहगोरा, क्या पूछा? इनमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट नहीं है, और अगले क्वेश्चन में फिर सोहगोरा दे दिया कि अशोका क्या पता नहीं इंस्क्रिप्शन या क्या इनमें से कहाँ मिला था। तो वो जो अशोका वाला क्वेश्चन था उसमें सोहगोरा नहीं था आंसर, लेकिन वहां से क्या समझ में आया कि सोहगोरा तो अशोकन मौर्यन साइट है, तो सोहगोरा हड़प्पा में क्या कर गया? हड़प्पा में आंसर हो गया सोहगोरा। आगे बात समझ? ऐसे इस साल क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले वाले में कुछ कॉन्गो एसोसिएटेड दिया, सेकंड वाले में दोबारा आंसर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दे दिया, वहां पे आंसर हो गया। कॉपर स्लैग स्टील स्लैग का क्वेश्चन आया था एक साल। तो बात समझ में आ रही है? कुछ हिडन आंसर्स होते हैं पेपर में, मुझे ना एकदम साइमल्टेनियसली देगा, एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे देगा, कभी बहुत दूर दूर नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना, सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो ध्यान से है ना, ये सब चीज़ें कब अप्लाई हो पाती हैं? जब आपके पास फोकस है और कॉन्फिडेंस है, डर नहीं रहे हो आप पेपर से, तब होता है सब अप्लाई। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फेमस पर्सनालिटीज, फ्रीडम फाइटर्स, रिलीजन, ऐसी चीज़ों पे नेगेटिव टोनैलिटी के स्टेटमेंट गलत होते हैं, नहीं दिए जाते हैं। अगर दिए जाते हैं तो गलत होते हैं, एंड पॉजिटिव टोनैलिटी के स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बोला, गोपाल बाबा देशमुख, है ना, गोपाल हरि बाबा देशमुख, मैं उनके बारे में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ही पार्टिसिपेटेड इन द XYZ मूवमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ मान लो कि ये गलत है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही डिड नॉट एट ऑल पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट। क्यों दे रहे हो फिर? क्यों दे रहे हो फिर? मतलब ऐसे कहना हो गया ना कि भाई ये बाबा ने, देशमुख बाबा ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इस मूवमेंट में। अरे क्या मीनिंग हुआ फिर उस स्टेटमेंट का? तो फेमस पर्सनैलिटीज की, फ्रीडम फाइटर्स की इज्जत करी जाती है, उनके बारे में अच्छे स्टेटमेंट्स बताए जाते हैं। सिमिलरली रिलीजन, जैसे एक वो ओडिशा वाला रिलीजन, क्या नाम है, जो बसावन भगवान को मानते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लिंगायत्स। तो वहाँ पे क्या देगा? मान लो ऐसे देता है कि लिंगायत्स आर वेरी हार्ड बिलीवर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। अरे तो ये नेगेटिव है ना स्टेटमेंट, तो लिंगायत कम्युनिटी ऑफेंड हो जाएगी ना ऐसी चीज़ों से। मान लो किसी रिलीजन में कोई खराब चीज है भी, तो यूपीएससी का पेपर इज नॉट द राइट प्लेस टू ब्रिंग इट अप ना भाई, राइट? तो ऐसे केसेस में ये गलत होता है ना। तो मतलब अगर नेगेटिव टोनैलिटी का स्टेटमेंट है तो गलत होगा।
पॉजिटिव टोनालिटी है, हाँ लिंगायत्स बहुत सेक्युलर दिमाग के हैं, या फिर लिंगायत्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, सही है, सब सही है ना। देशमुख बाबा ने ये किया, देशमुख बाबा ने वो किया, सब सही है। पॉजिटिव टोनालिटी करेक्ट, नेगेटिव टोनालिटी इनकरेक्ट। समझ आ गई बात। नाउ अगली चीज़ है टिल नाउ बट रिसेंटली, है ना। ये भाई बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स होते हैं ये। कैसे बोलेगा, टिल नाउ इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर कोल बट नाउ वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अरे ऐसा क्या हो गया भाई अभी। Till today, there was a lot of import duty on palm oil, but recently the government has removed all the duties from palm oil as a special case. ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा? पाम ऑयल मतलब ऐसा क्या, धरती कोई कुआं खुद गया हमारे पे पाम ऑयल का? क्या बोलेगा इस बार, कैसा स्टेटमेंट आएगा? टिल नाउ इंडिया डिडंट हैव इट्स ओन लिथियम फैक्ट्रीज, लिथियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बट रिसेंटली इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन लिथियम मैन्युफैक्चरिंग। आप सोचोगे यार जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था, मार देता हूँ उसको ना, सही होगा ये, नहीं है वो सही। 1 साल में कोई नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लग रही है वहाँ पे, निकला नहीं है अभी तक कुछ, उसके माइनिंग प्रपोजल जाने में इतना टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं है वो। टिल नाउ बट ये हो गया, ये हो रहा था लेकिन रिसेंटली में ऐसा हो गया, गलत है भाई, ये इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई। चलो 38 देखते हैं। फाउंड ऑन एंटायर, ये मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। क्या बोल देगा, डुगोंग 2017 का क्वेश्चन है शायद, डुगोंग इज फाउंड ऑन द एंटायर इंडियन कोस्ट। अरे भाई कहीं तो ऐसा होगा जहाँ नहीं मिलता होगा, पूरे इंडियन कोस्ट में रह रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? कहीं तो ऐसा होगा जहाँ नहीं मिलता होगा। मोनाजाइट इज फाउंड ऑन द एंटायर इंडियन कोस्ट। अरे कहीं कहीं सॉइल में मिलता है भाई, ऐसे एंटायर इंडियन कोस्ट पे थोड़ी मिलेगा। ऐसे वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक हर जगह मोनाजाइट ही मिल रहा है, तो एंटायर इंडियन कोस्ट, ये थोड़े से स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, ये जनरली इनकरेक्ट होते हैं। फाउंड ऑन एंटायर है ना, पूरी जगह हर जगह मिल जाता है, ऐसे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। देन हमेशा देखो कि कौन से स्टेटमेंट्स करंट गवर्नमेंट के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, दोबारा सेम गवर्नमेंट आ रही है तो इसमें कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिलेगा। करंट गवर्नमेंट के क्या एजेंडाज हैं, कल्चर का प्रमोशन, हेरिटेज का प्रमोशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमोशन, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स बनवाना, है ना, टैक्स बोएंसी बढ़ाना, या फिर ऐसे टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा से हो सकता है यूज़ करना, गवर्नेंस बेटर करना, गवर्नमेंट इंटरफेयर कम करना। तो जितने भी ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट के एजेंडा को पुश करती हुई चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें करेक्ट होती हैं। ऐसी चीज़ों के 7 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट एजेंडा सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड गवर्नमेंट एजेंडा डिग्रेडिंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। समझ आ गई बात। तो गवर्नमेंट के एजेंडा को ना थोड़ा सा बेसिक, मतलब बेसिक यार सबको पता ही होता है गवर्नमेंट किन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, सबको पता ही होता है। तो ऐसी चीज़ों का हल्का सा ध्यान रखना है पेपर में। देन देयर आर सम थिंग्स विच शुड बी यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्या है, ये भी सुन लो भाई। लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है कि मान लो आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है पेपर में, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो आपको मारने के नहीं मारने हैं, है ना, आपके अटेम्प्ट कम हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार शायद गड़बड़ हो रही है पेपर में, तो मैं कुछ लास्ट रिजॉर्ट बताता हूँ, आंसर में मार आना अगर दिखते हैं तो, ठीक है। लिख लो, सबसे पहले पोर्ट्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉइन, फिर नेक्स्ट बुद्धिज्म, उसके बाद विजयनगर, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, फिर अशोक, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, ठीक है। अगर नहीं दिखे कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं दिखे पेपर में, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है ना, लेकिन आता नहीं है क्वेश्चन के बारे में कुछ, इनमें से कुछ दिख रहा है मार दो, ठीक है। आगे बात समझ, इनमें से कुछ दिख रहा है मार दो। लेक्स भी एक इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। खास कर तो अभी बताओ, ये चीज़ें जब इतने सालों से चलती आ रही हैं, इसी चीज़ के बेस पे मैंने इस बार भी पोर्ट 2023 में भी दिखा आपको, पोर्ट का आंसर ठीक है, तो ठीक है ना भाई, वो चल रहा है ना, वो है ना, वो मतलब अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना वो चीज़। तो ये सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते हैं, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चलती रहेंगी, ठीक है जी। ये थे आपके 40 चीज़ें, 40 थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप दे गिव यू एन एज ऑफ 40 मार्क्स। ये यार मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोगों को 40 मार्क्स का एज मिले इन चीज़ों को सही से अप्लाई करके। 40 का भी नहीं मिलेगा तो भाई 20-25 नंबर तो कहीं नहीं गए, इनका एज तो मिलता ही मिलता है आपकी नॉलेज के अप एंड बियॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने सही से अप्लाई कर रहे हो, आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस किया कि नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बनाई कि नहीं है, सीखी है कि नहीं है। ओके ये चीज़ों पे डिपेंड करते हुए दीज 40 थिंग्स विल गिव यू मार्क्स। ऑल राइट, क्लियर। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप लास्ट तक टिके क्या इस लेक्चर में।
It is absolutely important for me to know if you like this lecture. If you liked something about it, please do let me know in the comments. Then again, as I'm saying, there will be a D-Day lecture. ठीक है, there will be a D-Day lecture within the next 24 to 36 hours. There will be a D-Day lecture that will be posted on the YouTube channel, जिसमें मैं सब बताऊंगा भाई कि आपको उस दिन कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, OMR कब भरना है, ये वो एवरीथिंग एब्सोल्युटली एसेंशियल बिफोर गोइंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एब्सोल्युटली एसेंशियल. ये लेक्चर एब्सोल्युटली एसेंशियल और ये D-Day वाला एब्सोल्युटली एसेंशियल. ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है जी. आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज हेल्पफुल. आई होप यू विल बी एबल टू यूज देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम like January when we started the MAD live series and till date जून आ गया. तो ये 5-5.5 महीने आप मेरे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ मैं. थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू आर हेयर विद मी थ्रू आउट दीज लेक्चर्स. अ लॉट ऑफ यू हैव सीन ऑल द लेक्चर्स, यू हैव सीन द लेक्चर्स मल्टीपल टाइम्स. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर, दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. भगवान करे आपका ये सारी मेहनत, आपका ये सारा जितने भी आपने सीखा है, आपको बहुत 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 अच्छा स्कोर दिलाए पेपर में, और दिलाएगा. कॉन्फिडेंट है ना? बहुत अच्छा दिलाए नहीं, बहुत अच्छा दिलाएगा. कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी चीज़ों पे. ओके, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड. ठीक है जी, बस. तो एक बार बता दो, हो रहा है प्रीलिम्स क्लियर? अरे जोर से कमेंट में जोर से लिख के बता दो एक बार. आर यू क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर माय डियर स्टूडेंट, माय डियर एस्पिरेंट, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर? आर यू क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर? यस, आई एम क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर. Was this lecture helpful? Do let me know in the comments. I am here for you. Please do not worry. 3-4 दिन बचे हैं. एकदम शांति से पढ़ाई करते रहो, आराम से, बिल्कुल चिल होके. ठीक है, चलो. Thank you so much. Please take care. This is Satyam Jain, and this is the conclusion of the MAD series. I hope the entire MAD series was helpful for you. I hope this particular lecture was helpful for you. Take care. All the very best. Satyam Jain signing off till we meet in the next lecture. Take care. All the very best. May all the power of the universe be by your side. Jai Hind, Vande Mataram. Take care.